Hello everyone, welcome to Bivkuf IAS. We're going to start our physical geography lecture 1, in which I'm going to teach you 40 years of PYQs with trend analysis, hacks and approaches thereafter on, after doing the trend analysis and explanations of each and every topic. Got it? So let's head towards our respective syllabus. So first is the resource geography. This is first. Second is geomorphology. Third is, this is the second one, geomorphology. Third is climatology. Fourth is oceanography. The sixth one is astronomy and solar system. Now this is correct. Sixth one. Seventh is Indian physical geography. Thereon, the eighth one is population geography. So it is an intermix of everything. The population, the resource geography, some kind of economic geography is also there. Then there is world geography in it. We'll do that too. Industrial geography, economic geography. It is also included in this only, physical geography. The last one is industrial geography. So what we're gonna do first is the geomorphology. After that, climatology, oceanography, and other things, right? And this first one, the resource geography, will be done later on after doing all these major important four. We'll do the resource geography in the fourth or the fifth lecture. So for the first lecture, now we are heading towards geomorphology. We'll do it first. Okay. So let's see the past year questions and the trend analysis in this. और हम इसमें करेंगे क्या? हम इसमें रिसर्च रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं, राइट? सॉरी. सबसे पहले हम 1979 के क्वेश्चन पे जाएंगे. रिवर्स इंजीनियरिंग में भी हमें रिवर्स में जाना पड़ता है क्रोनोलॉजिकली. ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग से चले जाएं. और हम स्टार्ट वाले को डिराइव कर लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं. गॉट इट? Sorry. In 1979, the first question was on Richter scale and earthquake zones of India. Got it? Then thereon in 1980, metamorphic rocks, igneous rocks, sedimentary rocks. So from the rock system it came. After that, Isthmus, Strait, Equinox, Sand Dune. In 1980, again continental shelf. So these three are coming up in 1980. In 1982, classification of rocks. See these three classifications. Got it? In 1986, similarity between South America and Africa. Now see, this is from continental drift, Alfred Wegener's theory, a kind of that. Got it? That zigzag वाला पजल जो सॉल्व किया था उन लोगों ने, वो ये है. तो ये भी हमको देखते रहना है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ज्योग्राफी के अंदर प्री और मेंस का काफ़ी मतलब कोलाइड करता है एक दूसरे से, लगभग सेम सा ही रहता है अगर इस टाइप के क्वेश्चंस दिखते हैं तो. आफ्टर दैट प्यूमेस 1986. 1987 में सी रेडियल, सुपर इम्पोज्ड, एंटीसीडेंट, एनुलर, सारे ड्रेनेज पे एक साथ. ड्रेनेज, कोस्टलाइन ऑफ सबमर्जेंस 1987. सी अर्थक्वेक्स पे, सेस्मिक वेव्स अर्थक्वेक्स पे. 1989 एल्प्स आ गए, रॉकी माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स. क्या है? फोल्ड वाली तो हैं. विल लुक इनटू दीज. इनके ऑप्शंस भी देखेंगे हम, इनके एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे, सारे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से एकदम. फिर ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं वो देखना है, लैंडफॉर्म्स के अंदर आ जाएगा. कार्डेरा आ गया, कोर्स ऑफ द रिवर. अभी रिपीटेशन दिखेगा थोड़ी सी देर में जब ये चीज़ें हो जाएंगी. फिर केप वर्डे आइलैंड, थार, मशरूम रॉक्स के ऊपर. फिर आपका आया 1999 के अंदर इंटरस्टेलर
hypothesis, tidal hypothesis, hypothesis, supernova hypothesis. 2001 में सॉइल इरोजन के ऊपर क्वेश्चन है. 2001 में फिर से रॉक फॉर्मेशन आ गया, यही सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सारी चीज़ें रॉक फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है. उसके बाद में 2001 में आपका क्वेश्चन आ रहा है अर्थक्वेक्स के ऊपर, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक्स, रिक्टर स्केल, मर्सेली स्केल. 2001 में मैग्मा लावा, इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है. ये आ गया मैग्मा लावा, ये रहा आईवीएल, इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, सीधे वोल्केनिज्म पर क्वेश्चन है. ये आपका अर्थक्वेक्स पे आ गया, वही ईक्यू पे अभी देखा था, सेस्मिक वेव्स वगैरह. अर्थक्वेक्स का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, रिक्टर स्केल क्या है, मर्शेली स्केल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स पे ये वाला क्वेश्चन. आर यू गेटिंग इट? ये इस तरीके से ना अभी आगे जाएगा. ये देखिए कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक यहाँ आ गया. गेटिंग इट? इस तरीके से बार बार आता है. लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया. यंग फोल्ड माउंटेन्स अभी करा था हमने थोड़ी देर पहले, रिपीट हुआ. रिक्टर स्केल अभी किया है जस्ट इसमें, ये यहाँ रिपीट हुआ. गेटिंग इट? मैग्नेटिक फील्ड देख लेंगे. और क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. अभी सबसे पहला ही क्वेश्चन 79 80s में जो आया था, वो वाले 80s वाले जो भी हमने देखा था, वो यहीं से मैच कर रहा है अल्फ्रेड ड्रेंगल की कॉन्टिनेंटल थ्योरी को. इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पे क्वेश्चन. अब देखिए टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स. ये क्या है, ये अर्थक्वेक ही तो है, अर्थक्वेक वाले ही तो हैं ये क्वेश्चंस. और क्या है, पी वेव्स और एस वेव्स में क्या डिफरेंस है, वो सेम क्वेश्चन वहीं से उठा करके पूछ रहा है. साथ ही साथ में हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे, जैसे क्रस्ट, मेंटल कोर, उनके बीच की ये मेरोविक डेंसिटी हो गया, और बाकी डिसकंटिन्यूटी हो गया, बाकी की डिसकंटिन्यूटीज़ जो हैं वो वाली डिसकंटिन्यूटी, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे. साथ ही साथ में बाकी की अगर कोई चीज़ छूटेगी तो आई डिक्टेट ओवर हियर. बट द थिंग इज़ दैट कि यूपीएससी क्या पूछना चाह रहा है. यूपीएससी वो सब नहीं पूछ रहा है, यूपीएससी यही चीज़ें पूछ रहा है. तो हमको ये वी हैव टू इनकलकेट. जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में हो रहा है ऐसे इसमें भी होगा. सभी सब्जेक्ट्स में इस तरीके से किया जाए. तो वी हैव टू हैव द कमांड ऑन दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ हैविंग कमांड ऑन ईच एंड एवरीथिंग. जैक ऑफ ऑल स्पैरो नहीं चाहिए. गॉट इट? बट द नोअर ऑफ इस तरीके से चाहिए. सो लेट्स हेड टूवर्ड्स आर geomorphology. Page number, we'll do it from 1979 only. Page number 79. Geomorphology, we'll do it from 1979. Even the diagrams are also there, so it will be much resourceful and knowledgeable for us to do the things. Now head on towards 1979 question. रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर. अब देखिए उस टाइम पे सिंपल सवाल आ रहे थे, बट वो आज की डेट में भी वही है, बस घुमा करके पूछ रहा है. वो सिंप्लिसिटी अभी गई नहीं है यूपीएससी की. चीज़ें वही पूछ रहा है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है. तो रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर. आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट दिस. earthquakes, right? The answer is earthquake, but still we should learn something about Richter scale. Richter scale is used to measure the magnitude of an earthquake. The more destructive earthquakes typically have magnitude between 5.5 to 8.9. इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बस रिक्टर स्केल मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इतना हमको पता होना चाहिए. 1980 में क्वेश्चन आता है, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स फॉसिल्स आर मोर अबडेंटली फाउंड. सबसे ज़्यादा फॉसिल्स किसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं. गॉट इट? अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ. इग्नियस रॉक में क्या होगा, मेटामॉर्फिक में क्या होगा, या सेडिमेंट्री में क्या होगा. तो सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती है जो सेडिमेंट्स के द्वारा सेडिमेंट्स के इकट्ठा होने पे बनती है. गॉट इट? कोई डेड बॉडी है किसी भी एनिमल का, उसके ऊपर सेडिमेंट्स आने स्टार्ट हुए, और आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए, फॉर्मेशंस होती गई होती गई होती गई, वो उस पर प्रेशर बना, रॉक बन गई. दीज आर कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक्स. और उसका आंसर भी सेडिमेंट्री रॉक ही है. मेटामॉर्फिक और इग्नियस अभी आने पे और बताऊंगा, या फिर मैं अभी यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो इसका आंसर सेडिमेंट्री है. फॉसिल्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स अमंग द 3 मेजर रॉक्स.
Sedimentary rocks are those that are created at earth's surface by the deposition and lithification. लिथिफिकेशन का मतलब कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, ये कॉम्पैक्ट जो बन गया, सीमेंट जो बन गया, इसी को लिथिफाई बोलते हैं। और डिपोजिशन ये हो रहा था, सिंगल लेयर का डिपोजिशन हुआ, फिर सिंगल लेयर का डिपोजिशन हुआ, फिर उसके बाद में एक लेयर का डिपोजिशन और हुआ, वो होता है कॉम्पैक्शन। गॉट इट। अब इन इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, इनकी एक साइकिल होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स की, इग्नियस रॉक्स की, और आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स की। इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होती हैं जो इग्नियस रॉक्स से और सेडिमेंट्री रॉक्स से दोनों जगह से बन सकती है, मेटामॉर्फिक। गॉट इट। और इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, तो इग्नियस रॉक्स वो होती हैं जैसे मान लीजिए वल्केनिज्म हुआ, ठीक है, अंदर ही रह गया और वो कोल्ड हो गया, तो वो रॉक फॉर्म करेगा। दीज आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। सिंपल, इतना ही है। या फिर इग्नियस रॉक्स में वो मैग्मा बाहर निकल के आ गया, जमा हो गया, इग्नियस रॉक्स हो गई। डेक्कन प्लेटू इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक्स का। गेटिंग इट? लेट्स रीड इट। Due to various reasons, for example, tectonic movements of plates, crustal loading, density differences, the magma is forced upward on the surface as lava through the crust along lines of weakness. Thus, after cooling of lava, two types of, igneous rocks form. The first type of rock will spill out on the surface and consolidate to form extrusive igneous rocks. दो टाइप की हैं, एंड अनदर वन दैट डज नॉट फाइंड एन आउटलेट, समटाइम्स इट solidifies in cavities and fissures within the crust to form intrusive igneous rocks. Getting it? कुछ बाहर निकल आई तो एक्सट्रूसिव, अंदर रह गई तो इंट्रूसिव। अब अंदर में भी अलग अलग टाइप के वो बनाती हैं, इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से फॉर्मेशंस होती हैं उनकी, उनके अलग अलग नेम्स होते हैं। बट इफ़ यूपीएससी इज आस्किंग, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, वरना मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर के जाने का कोई मतलब नहीं बन रहा। गेटिंग इट? गेटिंग इट ना? तो अच्छा, एक चीज़ और है, वल्केनिक इरप्शन होता है जब, तो वल्केनिज्म जब बाहर की तरफ आएगा तो वो लावा होगा, अंदर होगा तो वो मैग्मा होगा, होगी वही चीज़, लावा बाहर, मैग्मा अंदर। गेटिंग इट? लेट्स हेड ऑन टूवर्ड्स the 1980 question. A narrow strip of land bordered on both sides by waters connecting to larger bodies of land is called, सोचिए। देखिए, ड्यून जो होता है वो डेजर्ट में होता है। इक्विनॉक्स का इसका कोई रिलेशन नहीं है, इक्विनॉक्स का रिलेशन अर्थ के और सन के बीच के इन पर है। किस टाइम पे सन अर्थ के बिल्कुल इक्वेटर पे आ रहा है या कौन सी जगह पे आ रहा है, इक्विनॉक्सिस तब आते हैं, ठीक है। ये रहा, इक्विनॉक्स रेफर्स टू अ डे विद एन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। इक्वल जब करता है वो, सन और अर्थ से रिलेशन है उसका, इससे नहीं है। इस्तमस और स्ट्रेट क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। इस्तमस में सबसे एंड में बताऊंगा क्योंकि आंसर ये है। तो स्ट्रेट देख लेते हैं, पाक स्ट्रेट हो गया, मलक्का स्ट्रेट हो गया, दो बॉडीज है उनके बीच में वाटर का रास्ता निकल रहा है, दैट्स द स्ट्रेट। गेटिंग इट? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, बाकी के स्ट्रेट्स हो गए। वर्ल्ड का सबसे फेमस स्ट्रेट का नाम आप बताइएगा क्या है, जहाँ से सबसे ज़्यादा पासिंग होती है, इजिप्ट के पास है वो। गेटिंग इट? और इस्थमस क्या होता है? इस्थमस यही होता है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बॉर्डर्ड ऑन बोथ साइड बाय वाटर कनेक्टिंग टू लार्जर बॉडीज ऑफ लैंड। गेटिंग इट? एक नैरो स्ट्रिप लैंड की जो होती है, दोनों साइड से पानी से घिरी हुई, इधर भी पानी इधर भी पानी, और इधर लार्जर, एक सेकेंड, इधर लार्जर बॉडीज हैं, लैंड, ये लैंड, ये लैंड। गेटिंग इट? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो इस्थमस डिवाइड करता है ना, उसका नेम आप कमेंट में लिखिएगा कौन सा है। गेटिंग इट? तो इस तरीके से सोचना है कि वर्ल्ड में कहाँ पर है, कैसा है। गेटिंग इट? और सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स इज एन हिली और ऑफ लूज सैंड शेप्ड बाय द विंड्स। रेगिस्तान में देखें, टीले से खड़े हो जाते हैं थोड़े थोड़े,
छोटे छोटे टीले होते हैं, थोड़ी लेयर्स टाइप की ऐसे आ रखी होती हैं, दैट आर कॉल्ड ड्यून्स। और फिर भी याद ना आ रहा हो तो एक ड्यून मूवी है, उसका इमेज देख लीजिएगा, बस पोस्टर उसमें दिख जाएंगे। नाउ लेट्स हेड ऑन टूवर्ड्स 1980 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन फिर आया, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सॉरी कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है वो तो आप छोड़िए, पहले आप बाकी सारी चीज़ें सीख लीजिए, उसके बाद में वी विल हेड ऑन टूवर्ड्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड वी विल रीड द ऑप्शंस। फिर आप खुद बताइएगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल राइस क्या है, या फिर स्लोप क्या है, ओशन क्या है, कोस्ट क्या है। और हमें ज़्यादा नहीं पता होना है, हमें थोड़ा बहुत ही जानना है, बस इतने से ही काम हो जाएगा प्रीलिम्स में। जितना ज़्यादा करके जाओगे ना उतना फ़ायदे में नहीं रहोगे, याद रखना, बेसिक्स पता होने चाहिए। नाउ यू सी दिस इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। सियाल सीमा आई थिंक सब लोगों ने पढ़ा है। सियाल सीमा, सीमा इज ओशनिक क्रस्ट और सियाल इज, कौन सी क्रस्ट होती है सियाल, लैंड वाली क्रस्ट। गेटिंग इट। तो ये बात कर रहा है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप वो होती है जो कनेक्ट कर, देखिए ये ऐसे जा रही है फिर ओशन में चली जाती है, तो स्लोप जो है जो कॉन्टिनेंटल राइज तक कनेक्ट कर रही है, और फिर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट करती है कॉन्टिनेंट को ओशनिक क्रस्ट से, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को यानी लैंड वाली क्रस्ट को ओशनिक क्रस्ट से कनेक्ट करती है, याद रखना ये चीज़। दैट्स व्हाट कॉन्टिनेंटल स्लोप इज। गेटिंग इट। और हल्का सा जो सबमर्ज होता है ना ओशन के अंदर, कॉन्टिनेंटल स्लोप से पहले वाला हल्का सा सबमर्जेंस, दैट्स कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। गेटिंग इट। वो आप समंदर के किनारे में 100-200 मीटर 300 मीटर देख रहे होते हो ना, हल्का 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 शेल्फ जो होता है वो, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। गेटिंग इट। इसकी डेप्थ 200-300 मीटर तक जाती है वैसे, उसके बाद में सीधे कॉन्टिनेंटल स्लोप जाता है। गेटिंग इट। ओशन से आ रहे हो तो उसे कॉन्टिनेंटल राइज बोल दोगे, और कॉन्टिनेंट से ओशन के अंदर जा रहे हो तो उसे कॉन्टिनेंटल स्लोप बोल दोगे। दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग्स, ये भी याद रखना। ओके तो एग्जाम में बस सिंपल चीज़ें, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, स्लोप क्या है, शेल्फ पहले आएगा फिर स्लोप आएगा। शेल्फ आप अपने घर में शेल्फ रखते हो उस हिसाब से सोच लो, कोई स्लोप है शेल्फ है, इस तरीके से भी यू कैन थिंक इन द एग्जाम। आई एम गिविंग यू द थिंकिंग पैटर्न इवन इफ यू डोंट रिमेंबर। ये रहा सी कोस्ट। Getting it? Now let's see what the question is and you will be able to do it. What is continental shelf? It is a part of the ocean which is really an extinction of the landmass but submerged. Okay? It is that part where the ocean commences. It is a landmass, C option, it is a landmass which is surrounded by water on all sides. See, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. It is a part of the continent that is submerged in relatively shallow sea. See, relatively shallow. It's a shelf. Got it? और ये क्या है? Continental. It is a part of the ocean which is really an extension of the landmass. Continental slope ही तो है ये. Which is really an extension of the landmass. This is the extension of the landmass, ना? Continental slope. But it is the part of ocean. It is the part of ocean. But it is a part of this all this in physical terms, you know. तो ऐसे हमको याद रखना है। Getting it? 1981 में क्वेश्चन आता है, अर्थक्वेक्स आर कॉज ड्यू टू। अर्थक्वेक्स किस लिए कॉज हो रहे हैं उसके लिए बताना पड़ेगा ना, अर्थक्वेक क्यों कॉज होते हैं। देखिए अर्थ के नीचे ना प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। गेटिंग इट। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। अब ये टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी में बताने यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं पहले कह दे रहा हूँ। तो इतनी चीज़ें वन शुड नो, द सीरियस एस्पिरेंट शुड नो थोड़ी बहुत चीज़ें। टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे से ऐसे कोलाइड करती हैं, मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ, मैं इवन आई कैन टीच यू इन दैट सेंस ऑल्सो कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मैं कन्वर्ज करना बताऊँ, डाइवर्ज हो रही है, इसको कॉल कन्वर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आई कैन टेल यू, बट आई वॉन्ट टू सिंपली टेल यू दोज थिंग्स जिससे आपका एग्जाम में पेपर निकले। आपको सिंपल सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना। समझो आप किसान के बच्चे हो, दैट्स इट। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं, कन्वर्जेंस होता है, टकराती हैं एक दूसरे से, इसका मतलब ये है वो
अच्छी खासी एनर्जी तो जनरेट करेगी जब कोई दो चीज़ें टकराएंगी, कार कार से टकराती है तो एनर्जी तो जनरेट होती है ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे टकराना हुआ या फिर ऊपर नीचे हो गई इस तरीके से कोलाइड करके, तो दीज थिंग्स हैपन। एंड उसके बाद में अर्थक्वेक होता है कि अपसाइड डाउन हो गया, या फिर अब वो डिपेंड करता है कि पी वेव्स आई हैं कि एस वेव्स, विल डू दैट ऑल्सो, क्योंकि अर्थक्वेक का स्टार्ट हो गया, अर्थक्वेक पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक इसमें अर्थक्वेक ही है, और वल्केनिज्म का भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं अर्थक्वेक के अंदर। गॉट इट। सिस्मिक एक्टिविटी बोलते हैं इसको। इसमें एपी सेंटर जो ऊपर वाला एरिया है ना, जो सरफेस पे टच होता है, दैट्स कॉल्ड एपी सेंटर। पर जहाँ पर वो बना है, यू नो, उसको क्या बोलते हैं आप बताइए, किसी को पता है? फोकल पॉइंट बोलते हैं इसको। गॉट इट। और एपी सेंटर जस्ट फोकल पॉइंट के एग्जैक्ट ऊपर होता है, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर, या फिर कह लो पैरेलल, या फिर कह लो परपेंडिकुलर, जैसा कहना चाहो वैसे कह लो, यहाँ पर होता है जस्ट ऊपर, ठीक है। तो earthquakes are caused due to volcanic eruptions. Sometimes it does, but it doesn't. Everyone knows. Okay. Movement of a part of earthquake surface on account of the faulting of rock. Even volcanic eruptions sometimes happen due to the, you know, this D option. Movement of a part of earth surface on account of the faulting of a rock. इसी को faulting बोलते हैं, ठीक है। अगर रॉक का फॉल्ट हो गया तो भी हो जाएगा। वैसे रॉक नहीं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स पे ही होता है मोस्टली। The main cause of earthquake is the release of the energy from the Earth's crust in the form of seismic waves that travel in all directions. These vibrations that arise from the earthquake are measured on instruments known as seismographs. Earthquake is defined as a sudden shaking of the Earth's surface. Got it? Let's do the another question. Generally speaking, all rocks may be classified into three major groups such as C. Simple question. अब इसमें तो कुछ नहीं है ना, तीन ग्रुप्स बताए थे ना, MIS, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्नियस। इग्नियस और इससे मेटामॉर्फिक बन सकता है, फिर मेटामॉर्फिक भी टूटेगा कभी, फिर वापस से सेडिमेंट्री बन जाएगा, फिर क्या पता मेटामॉर्फिक ज़्यादा नीचे चले जाए क्रस्ट तक, तो वहाँ से वॉल्केनिज्म के थ्रू इग्नियस रॉक बन के निकल जाए। तो ये साइकिल है, नेवर एंडिंग साइकिल। जब तक अर्थ है तो एटलीस्ट तब तक, या ब्रह्मांड है, बाकी के प्लैनेट्स हैं तब तक भी चलेगी, जहाँ जहाँ वॉल्केनोज हैं। गेटिंग इट? तो इसका आंसर क्या है? igneous, sedimentary and metamorphic. See this. igneous rocks का फॉर्मेशन कैसे होता है? थ्रू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, जो मैंने बताया था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नो लेयर्स, हार्डेस्ट ऑफ ऑल, टाइप्स इंट्रूसिव, स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? थ्रू कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैसा फॉर्मेशन हो रहा है? थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्डर रॉक्स। यही ओल्डर रॉक्स धीमे 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 ट्रांसफॉर्म होकर ऐसे आ जाती हैं, यही वाली ट्रांसफॉर्म होकर के ऐसे आ जाती हैं। और जब ये ज़्यादा नीचे चली जाती है ना क्रस्ट के, तो ये मैग्मा बन के बाहर निकलती हैं इसके थ्रू, और फिर ये वापस से इग्नियस बन जाती हैं, या फिर ये टूट जाएंगी, ऊपर हैं तो टूटेंगी और सेडिमेंटेशन के थ्रू ऐसे भी आ सकती हैं। बस सोचो आप इस तरीके से, यू हैव टू थिंक, ज़्यादा याद नहीं रखना, बस सोचना है कि यार ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, चीज़ें हो जाएंगी। द कंक्लूजन The conclusion that Asia and 1982 question, the conclusion that Asia and Africa had a single landmass is provided by, देखिए क्वेश्चन क्या है, एशिया एंड अफ्रीका हैड अ सिंगल लैंड मास इज प्रोवाइडेड बाय, देखिए द डेजर्ट इन द एशिया एंड अफ्रीका, नो। द सिमिलैरिटी इन क्लाइमेट ऑफ सर्टेन रीजन्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, नो। द फाइंडिंग ऑफ द सेम टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन बोथ द रीजन्स। देखिए इन तीनों ऑप्शन में पता है क्या है, एक चीज़ इन तीनों के अंदर आपको दिख रही होगी कि सिंगल लैंड मास, हाँ, यस। डेजर्ट दोनों में पाए जाते हैं, यस। सिंगल ऑप्शन नहीं होगा। और सिमिलैरिटी इन आपका सिमिलैरिटी इन क्लाइमेट ऑफ सर्टेन रीजन्स ऑफ एशियन अफ्रीका, हाँ, ये वाला पॉइंट। द फाइंडिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ फॉसिल इन बोथ द रीजन्स, यस। तो ये सारे ही थोड़ा थोड़ा यस कर रहे हैं, और डी ऑप्शन में यही मैंने देखा कि ऑल ऑफ दीज दे रखा है, तो विल हेड ऑन टूवर्ड्स ऑल ऑफ दीज। ये सिंपल क्वेश्चन है, इन पे इतना ध्यान मत देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज?
देखिए डेल्टा क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। बांग्लादेश है, सुंदरबन है, सुना ही होगा, रिवर गंगा का और ब्रह्मपुत्र का जहाँ पे मिलन हो रहा है और फिर आगे जा कर के डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है। गेटिंग इट? रिवर आ रही है पूरी, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड डेल्टाज। गेटिंग इट? और वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांट कौन से उगते हैं? मैनग्रोव्स, ये याद रखना। और वहाँ पे बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, ये भी याद रखना। और वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा है वो। ओके, ये चीज़ भी याद रखना। अब डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक्टिव वर्टिकल एंड लेटरल इरोजन इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव सेडिमेंट्स टू बी इवेंचुअली डिपॉजिटेड एज डेल्टाज। इतने सेंटिमेंट्स गंगा और ब्रह्मपुत्र कितनी बड़ी नदियां हैं, वो लेकर के आ रही हैं, उनके अपर कोर्स में हो ही रहा है इतना एरोजन, वहाँ से लेते लेते ये एंड तक आई और जब समंदर में मिल रही है तो वहाँ पे रुक रोक मतलब वहीं पर फॉर्मेशन हो गया। गेटिंग इट? तो ये रिवर्स के ऊपर है, समझ में आया? दूसरी चीज़ मैनग्रोव्स हैं यहाँ पर, तो टाइडलेस तो हो ही जाएगा। गेटिंग इट? और टाइडलेस वैसे भी हो जाता है क्योंकि ये ट्री की ब्रांचेस की तरह बनती हैं, तो कोई टाइड आएगी और ट्री की ब्रांचेस हैं तो वो रोकेगा ना उसको, इसलिए प्रेफरेबली tideless. The sea joining the delta should be shallow or else the load will disappear in deep waters. There should be no large lakes in the river course to filter off the sediments and there should be no strong current running at right angles to the river mouth washing away the sediments. I hope you get this point. तो इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा? काम विंड्स, ना इससे फर्क नहीं पड़ रहा। शेल्टर्ड कोस्ट, इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा। नो लार्ज रेक इन द रिवर कोर्स इज नॉट द फेवरेबल फॉर द सी। करेंट्स एंड टाइड से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये तीन ऑप्शन है ही नहीं, आंसर इसका डी है, इन लोगों ने गलत दे रखा है। नो लार्ज लेक्स इन द रिवर कोर्स, गॉट इट? अभी पढ़ा था ना, देयर शुड बी नो लार्ज लेक्स इन द रिवर कोर्स टू फिल्टर ऑफ द सेडिमेंट्स एंड देयर शुड बी नो स्ट्रॉन्ग करंट रनिंग एट द राइट एंगल्स टू द रिवर माउथ। तो इसका आंसर नो लार्ज लेक्स इन द रिवर कोर्स भी है, साथ ही साथ में करंट भी नहीं होना चाहिए, बट टाइड्स का आ गया। चलो ठीक है, ये बी और डी जाएगा, फिर बी और डी जाएगा इसका आंसर। टाइड्स आ गया, इस वजह से मैंने नहीं लगा रहा। ओके, क्योंकि डेल्टास का टाइड का कोई रिलेशन नहीं बनता, करंट्स का चलो ठीक है, एक बार को मैं मान सकता हूँ। मैच द कॉलम्स। मैग्नीशियम, अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, आ गया ना सीमा सियाल वाला, यही अभी थोड़ी देर पहले कराया था, याद करो। अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट को क्या बोलते हैं हम? लाइट रॉक्स ऑफ द लिथोस्फीयर क्या बोलते हैं? स्मॉल पेनिनसुला किसे बोलते हैं? करिए याद। मैग्नीशियम कहाँ पाया जा रहा है वो भी देखिए। अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट को क्या बोलते हैं? मेंटल क्रस्ट, मेंटल कोर, गॉट इट? सबसे ऊपर क्या है? क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो सेकंड का 1 हो गया। सेकंड का 1 किस में है यहाँ पर? सेकंड का 1 इस वाले में, तो आंसर तो वैसे ये हो गया, बट स्टिल वी शुड लुक इनटू अदर थिंग्स। लाइट रॉक्स ऑफ द लिथोस्फीयर, सबसे लाइट रॉक्स को क्या बोलते हैं हम लिथोस्फीयर की? सियाल, वही सरफेस एरिया वाला जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ रहता है वो सियाल का है, और ओशन वाला सीमा का है। इतना ही समझना है, गॉट इट? स्मॉल पेनिनसुला इज कॉल्ड बिल। मैग्नीशियम हमें सीमा में मिलता है, वो एक ही पता होना चाहिए था, बाकी ज़्यादा की जरूरत थी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉन्टिनेंट्स आर जस्ट लाइक द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर? विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉन्टिनेंट्स आर जस्ट लाइक द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर? साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड एशिया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में अल्फ्रेड वेंगलर था, उसने प्रूफ्स दिए थे कुछ, किसका मैच कर रहे थे? साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। 1986 में ये क्वेश्चन आया और देखना आगे चल के रिपीट आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा भी था उसके अंदर, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, याद है? वहीं पे देखा था। इसके ऊपर उल्टा पूछ लेगा अब आगे जाके, इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ लेना, या अभी मैं पढ़ा दूंगा आगे, अगर आएगा तो आएगा, वैसे मैं पढ़ा दूंगा। एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्स ऑफ, एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव, जस्ट अभी पीछे जाओ, करवाया था, किसके फॉर्म्स थे? याद आया कुछ?
इग्नियस रॉक्स के, अभी कराया था थोड़ी देर पहले। Pumice is derived from volcanic rock, sedimentary, igneous rock, acid lava। पढ़ो इसके बारे में, देखो। Pumice contains holes where gas bubbles were trapped in the molten lava. See, creating vesicular texture. The holes make pumice so light that it can float on water. या आपको वो वाला पत्थर याद है जिससे आप लोग आप अपने पैर वॉश करते हो, जो बाथरूम में यूज़ करते हैं, इसलिए यूपीएससी ने ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा। बाथरूम में यही तो यूज़ किया जाता है, प्यूमिस को ही तो यूज़ करते हैं बाथरूम में पैर रगड़ने के लिए। याद आया कुछ? लेग्स को रगड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, वही है ये प्यूमिस। ठीक है। और क्या बोला है? लावा से बना है, तो लावा जैसी दिख गया कि भाई लावा, लावा तो फिर क्या है, भारी तो होगा। लावा तो भारी होगा, और लावा किस चीज़ का फॉर्म है अगर बाहर निकल के आया तो? इग्नियस रॉक का। गेटिंग इट? प्यूमिस का मतलब भी वही है, पैर रगड़ने वाला, जिससे आप लोग अपने पैर रगड़ते हो, जो आप रॉक्स यूज करते हो बाथरूम के अंदर अपने। गेटिंग इट? और इग्नियस रॉक क्या होती है? लावा कहाँ से निकलता है? वोल्केनो से या फिर फिशर्स से, तो है तो वॉल्केनिज्म का ही पार्ट ना, तो वॉल्केनिक रॉक है ये। गॉट इट? इस तरीके से करना है, सिंपल सोचो। अब आ जाओ। ब्रह्मपुत्र इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ ड्रेनेज, एनुअल, एंटीसीडेंट, सुपर इम्पोज्ड, रेडियल। सबसे पहले तो रेडियल बताता हूँ, इस तरीके से होता है रेडियल। ठीक है, गॉट इट? सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट होते हैं, इनसे ऐसे ऐसे आएगा, दिस इज कॉल्ड रेडियल। गॉट इट ना? इस तरीके से होता रहेगा। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज देखो कैसा है, लास्ट में क्या बनाएगा वो? ऐसे स्लोप्स के साथ में, अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ में लेता हुआ आ रहा है इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड रूट्स की तरह ट्री की। गॉट इट? ऐसा होता है। एनुअल ड्रेनेज क्या होता है? पता है किसी को एनुअल ड्रेनेज क्या होता है? पहाड़ पे आ गया कोई बारिश एकदम से एनुअली, और वो एकदम से इस तरीके का ड्रेनेज आ गया, इस तरीके का ड्रेनेज। एग्जाम्पल देखो, पिथौरागढ़ में हो गया, नीलगिरी हिल्स में हो गया, केरला में हो गया। ठीक है। द रेडियल स्ट्रीम्स डेवलप सब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरीज विच ट्राई टू फॉलो अ सर्कुलर ड्रेनेज अराउंड द समिट। गॉट इट? सुपर इम्पोज क्या होता है? epigenetic drainage, a river flows over a softer rock stratum, reaches the harder basal rocks but continues to follow the initial slope. Got it? Damodar, Subarnrekha, Chambal, Banas and the rivers flowing at the Rewa plateau are examples। वो plateau के अंदर जो चल रही है ना सारी rivers, rocks के ऊपर से होते हुए काटते हुए। अब ऐसी एक ना रॉक, एक क्या बोलते हैं, एक काफ़ी फेमस जगह है अमेरिका में जहाँ पे सुपर इम्पोज ड्रेनेज होता है, वो आप कमेंट में लिखिएगा कहाँ पर है। गेटिंग इट ना? 1987 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज कोस्ट लाइन्स ऑफ सबमर्जेंस अपलिफ्टेड। एक सेकेंड, आप इसके ये भी पढ़ लीजिए। एनुअल ड्रेनेज व्हेन द सॉरी एंटीसीडेंट ड्रेनेज, इट इज कॉल्ड inconsequent drainage, a part of river slope and the surrounding area gets uplifted and the river sticks to its original slope, cutting through the uplifted portion like a saw, forming a deep gorges like vertical erosion or vertical down cutting। ऐसे ऐसे vertical down cutting इस तरीके से। इन द सतलज, ब्रह्मपुत्र एंड अदर हिमालयन रिवर्स वो ऐसी आती है। रेडियल ड्रेनेज मैंने आपको बता ही दिया था, सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट होता है, स्ट्रीम्स रेडिएट आउटवर्ड्स फ्रॉम अ सेंट्रल हाई पॉइंट। एग्जाम्पल गिरनार हिल्स। गिरनार हिल्स में कौन से टेम्पल्स हैं? जैना टेम्पल्स हैं, याद रखना। वहाँ पे टाइगर्स भी पाए जाते हैं गिरनार एरिया में, इसलिए उसका नाम ही गिरनार है, और ये गुजरात में है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ भी है। मिक्केर हिल्स ऑफ आसाम फॉर्म्स रेडियल ड्रेनेज पैटर्न्स। गॉट इट?
submergent coastlines or droned coastlines? Which of the following are known as coastlines of submergence? नहीं समझ में आया सबमर्जेंस क्या होता है। ये वैली है, ये वैली दिख रही है आप लोगों को, ये सबमर्ज हो गई, गेटिंग इट, या ड्रोन हो गई, इसी को बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है रिया कोस्ट का, शोरलाइन वैलीज इरोडेड बाय रिवर्स आर सबमर्ज्ड, हैज मैनी ऑफशोर आइलैंड्स, एक्सपोजर टू वेव्स इरोड्स आइलैंड्स एंड हेडलैंड्स। दिख गया, पूरा इरोड कर दिया है आइलैंड को, कुछ ऐसा था कुछ ऐसा कर दिया, इस तरीके से। फ्योर्ड कोस्ट, शोरलाइन वैलीज क्रिएटेड बाय glaciers are submerged. Valleys are deep and straight. Because of the depth, there are few beaches. Got it? ग्लेशियल फॉर्मेशन पिघला तो बन गया, या फिर डायरेक्ट रिवर्स या सबमर्जेंस के द्वारा हो गया। तो सबमर्ज शोर लाइन्स तो हमें सिर्फ नॉर्मली समझना है, ज़्यादा नहीं समझना। तो इनके दो एग्जांपल्स हैं, एक रिया कोस्ट और एक फ्योर्ड कोस्ट। प्लस स्पेलिंग फ्योर्ड FIORD COAST, ये दो याद रखिएगा कि कोस्ट लाइन्स ऑफ सबमर्जेंस ये हैं। आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ये 30 साल 40 साल के उठा के पुराने पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 1987 में क्वेश्चन आता है, सेस्मिक वेव्स दैट वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर पाथ। देखिए ये सेम क्वेश्चन अभी 2022 या 23 में आया है, मुझे आई डोंट रिमेम्बर 23 था या 22, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया है। याद आया कुछ? आ गया ना? पी वेव्स, सर्विस वेव्स, बॉडी वेव्स होती हैं तो उसमें दो आती हैं, एक पी वेव्स और एक एस वेव्स। ठीक है, पी वेव्स प्राइमरी वेव्स होती हैं, एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स होती हैं। सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं, एस पी वेव्स क्या करती हैं, सरफेस पे आगे कनेक्ट हो जाएंगी, 180 डिग्री पे रहती हैं, वो सरफेस पे आ गई, कनेक्ट हो गई, इस तरीके से सर्विस पे रहेंगी। पर एस वेव्स क्या करेंगी, ऐसे करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि वो 90 डिग्री का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फिटीग मार रही है, यानी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है अपवर्ड जाने के लिए भी, डाउनवर्ड जाने के लिए भी, इस तरीके से। तो वो 90 डिग्री पे होता है, गेटिंग इट, टू द सर्विस परपेंडिकुलर होता है, और वो वही पूछ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछी है, इसके अंदर ये है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये एस वेव्स के बारे में पूछ रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जो परपेंडिकुलरली ट्रैवल करेगी वो अर्थ, मान लीजिए ये अर्थ है, जो परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगी इस तरीके से, ये मान लीजिए एपी सेंटर है या एपी पॉइंट है। अर्थ के क्रस्ट के बाद में मेंटल आएगा, कोर आएगा इधर, फिर मेंटल। तो क्या ये उससे कर पाएगी क्लियर, क्योंकि वो लिक्विड आ रहा है वहाँ पे, गेटिंग इट, लिक्विड आ रहा है ना मेंटल पे। तो यही चीज़ है कि प्राइमरी वेव्स ना और सेकेंडरी वेव्स में ये एक मेजर डिफरेंस है कि वो सॉलिड पार्ट से सिर्फ क्या बोलते हैं, सॉलिड और लिक्विड और सारे पार्ट से प्राइमरी तो ट्रैवल कर जाती है, सेकेंडरी नहीं कर पाती, क्योंकि वो प्रोपोगेशन में रहती है परपेंडिकुलर, गेटिंग इट। पढ़ लेते हैं, याद रखिएगा इसको। और इसमें आई थिंक 105 डिग्री का वो भी होता है इंक्लाइनेशन के, 105 डिग्री तक ही जाएगी, कहाँ जहाँ पर भी जाएगी, इधर का एरिया बच गया, बट प्राइमरी वेव्स यू नो जा सकती हैं यहाँ तक, गेटिंग इट। When an earthquake occurs, it releases energy waves known as seismic waves. S waves, also called secondary waves, and shear waves are the secondary waves to hit the seismographs. They are transverse waves, means that the motion is perpendicular to the direction of the wave propagation. Wave आई, मोशन जो इसके अंदर हुआ वो उसके परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, उसके अपोजिट में चला जाता है, इसलिए 90 डिग्री पे चला जाएगा। वो ऐसे ऐसे कर देता है पूरे एरिया को, इस तरीके से एस वेव्स। S waves can only travel through solids, and scientists have successfully mapped the Earth's interior by studying the routes of these waves. ये जो अभी मैंने बनाया, ये क्या है? ये रूट ही तो है, ये 105 या 104 डिग्री है। यू चेक एंड यू राइट ओवर देयर ये कितना डिग्री है, कमेंट में लिख देना जो भी यहाँ तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर सिंपल है, ट्रैवल थ्रू द सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ ओनली, इट इज़ एज सिंपल एज दैट।
Another question. Another question. 1989. Which of the following is a block mountain? Alps, Vosges, Rocky, Andes. इनमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन है? ये सवाल अच्छा है एंड ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर है, ये इसमें डाल दिया इन्होंने पता नहीं कैसे, ये हमें अलग से पढ़ने थे। चलो कोई बात नहीं, हम इससे हमें नई लर्निंग मिलेगी कि हम ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ पाएंगे कि क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। गॉट इट? Block mountains are formed due to upward movement of the middle block between two normal faults. The upthrown block is also called as host. Vosges in France and are block mountains. ठीक है, सिंपली चीज क्या है, क्या बोल रहा है वो? दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, तीसरा ब्लॉक ये था, इन दोनों के बीच में प्रेशर आया, गॉट इट, ये ऊपर चला गया। यू गॉट इट? जो ऊपर रह गया उसको बोलते हैं होस्ट, जो नीचे है सब्सिडेंस। ठीक है, और अगर वो नीचे चला जाता है, मान लीजिए ये फोर्स इस तरीके से, मतलब यही फोर्स आ गया कि वो नीचे चला गया, नीचे की तरफ, तो रिफ्ट वैली जनरेट हो जाएगी। आप रिफ्ट वैली के एग्जांपल्स दीजिए मुझे, कहाँ पर है वर्ल्ड में? गॉट इट? आर यू गेटिंग इट? अच्छा, एल्प्स क्या हैं? द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर एग्जांपल्स ऑफ फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स। ओके, फोल्डिंग हो रही है वहाँ पे फॉल्ट के साथ में, यहाँ पे फॉल्ट पे ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, रॉकी क्या एग्जांपल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालयाज, द एंडीज, द रॉकीज एंड द एल्प्स। ओके, अच्छा, जिनको ये पता था कि एल्प्स, रॉकी और एंडीज सेम है, वो ऑड वन आउट भी कर सकते थे यहाँ पे। ये एक जनरल ट्रिक है इसकी, बट पूरा इसका पूरा पढ़ाना पड़ता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। पूरा का पूरा वी हैव टू हमको मुझे बताना पड़ रहा है, उसके बाद ही पता चल रहा है। अनदर क्वेश्चन, 1990 में 2000 सॉरी 20 इट्स रॉन्ग 1919 में एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स आर फीचर्स फॉर्म्ड बाय। अच्छा, एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एस्कर्स है क्या और ड्रमलिन्स क्या है। गॉट इट? एस्कर्स से कुछ एस्कीमो जैसा लग रहा है, मतलब मैं यहाँ पे आपको अप्रोच भी दे रहा हूँ एक, या ड्रमलिन से कुछ एस्कर से एस्कीमोस का तो कुछ लग रहा होगा, एस्कीमो टाइप कुछ ऐसा है कि कोल्ड वेदर वाला, कुछ ठंडी जगह, माइनस के टेम्परेचर्स, बर्फ़, गेटिंग इट, विंटर्स, उससे भी हो जाएगा। वो अप्रोच है, वो ट्रिक है, बट अभी मैं वो नहीं सिखा रहा, मैं आपको नॉलेज देना चाह रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं पेपर जब सॉल्व करूँगा ना तब सिखाऊंगा। ठीक है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसको डिराइव, और यहाँ पे ऑड वन आउट वाला हो रहा था, यहाँ से इसको भी कर सकते थे, बट हियर आई एम जस्ट गिविंग यू द बेस, क्लियरिंग योर बेस फंडामेंटल नॉलेज, व्हाट एक्चुअली यूपीएससी वांट्स यू टू नो, हैव दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज कि इतना तो पता ही होना चाहिए बंदे को। ठीक है, चलिए आ जाइए। एस्कर्स आर डिफाइंड एज द रिजेस मेड ऑफ सैंड्स एंड ग्रेवल्स डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियल मेल्ट वाटर following through tunnels within and underneath glaciers or through meltwater channels on top of glaciers. Got it? Another, drumlins are smooth, oval-shaped ridge-like features composed mainly of glacial till which with some masses of gravel and sand. देखिए मैं आपको आई विल शो यू दिस कि होते क्या हैं। ओके, एस्कर्स एंड, पहले एस्कर्स देखते हैं उसके बाद ड्रमलिन देखेंगे। ड्रमलिन ये आ गया, ये दिख गया, ग्लेशियल डिपोजिशन ये वाला, ओवल एंड एलोकेटेड हिल बिलीव टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमलाइन मूवमेंट ऑफ ग्लेशियल आइस शीट्स अक्रॉस रॉक्स, डेब्रिस और टिल्ट। ये है ड्रमलिन। गॉट इट? एस्कर्स देखते हैं क्या है। एस्कर ये रहा, दीज आर द एस्कर्स। गॉट इट? ये रहा एस्कर। इस तरीके से होते हैं, रिज ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल। गॉट इट?
एस्कर ये है। एस्कर क्लाइंबिंग ओवर हिल्स, ड्रमलिन्स, सी दिस। इस तरीके से बस हमको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं क्या होता है। इसमें भी दे रखा है एस्कर, ड्रमलिन फील्ड्स ये रहे, वो जो अभी हमने देखे थे, ठीक है। कैटल लेक ये रही, बीच में जो रह गया थोड़ा बहुत पानी वगैरह, वो बर्फ़ रह जाती है और पानी रह गया, वो है कैटल लेक्स। वापस से ये रही आउटवॉश प्लेन, सिंपल बेड रॉक है ये। ग्राउंड मोरेन, ग्राउंड मोरेन क्या होता है, जैसे सॉइल होता है ना, ऐसी ग्राउंड के ऊपर ये डिपॉजिट्स जो होते हैं सैंड, ग्रेवल और इन सब चीज़ों के, दीज आर कॉल्ड ग्राउंड मोरेन्स। रिसेशनल एंड मोरेन, यहाँ पर टचअप हो रहा है तो मोरेन का थोड़ा हाई जाना, क्यों, क्योंकि इसका भी तो वज़न जा रहा है माउंटेन का इस पे, इसलिए थोड़ा सा हाइटेड हो गया। गॉट इट। अब अगला क्वेश्चन 1990, काल्डेरा इज अ फीचर एसोसिएटेड विद। अब देखिए ये है पूरा इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे नहीं होता है, ये सब हम इसमें देख लेंगे। ये आपको सिल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। इस तरीके से आना, आई एम जस्ट मेकिंग दीज थिंग्स बिकॉज इससे आपको हेल्प हो जाएगी। ये डोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को लैकोलिथ बोलते हैं, इसमें ही जम जाएगा बाद में। ये ऐसी बैकोलिथ भी होता है, वो आई थिंक उल्टा होता है ऐसा। चेक इट वंस मोर, समटाइम्स इवन आई एम रॉन्ग। काल्डेरा विल सिंडर कोन ऑन द फ्लोर। काल्डेरा, ये आ गया, क्या है ये, दिख नहीं रहा आपको, देखिए क्या है काल्डेरा, ये वॉल्केनो ही तो है, सिंपल। ऐश कोन विद वॉल्केनिक डोम, लावा प्लेटू ये रहा, डक्कन प्लेटू है वो भी इसी टाइप का है। सिंडर कोन, लावा मेसा, कंपोजिट वॉल्केनो, एक ये है, दिस इज़ द, जो हम वॉल्केनो साइंस एग्जीबिशंस वगैरह में बनाते हैं वो थोड़ा कंपोजिट वाला ये होता है। गॉट इट। Calderas are collapse features that form large volcanic eruption when the underlying magma chamber is partially emptied and the ground above it subsides into it। ये आपको दिखा, इसका पार्ट इसी के ऊपर सबसाइड हो गया, उसी को काल्डेरा बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्केनिक eruptions होते हैं तब ये बनता है। गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेचोरिटी ऑफ रिवर कोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वी शेप्ड वैलीज, meanders, जॉर्ज एंड हाई डिन्यूडेशनल पावर। दिस इज द क्वेश्चन एंड इसका आंसर हम कैसे करेंगे, पहले हमको पता होना चाहिए कोर्स ऑफ रिवर में क्या होता है क्या नहीं होता है। गॉट इट। जब हमको वो पता होगा उसके बाद हम इसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हेड वाटर्स का जोन 1 होगा, जोन 2 ट्रांसफर जोन होता है, 3rd डिपोजिशनल जोन होता है। इसके अंदर क्या है, द स्ट्रेच ऑफ रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माउंटेन्स वेयर द रिवर मूवमेंट इज हाई। ये वाला एरिया, यहाँ पे रिवर मूवमेंट हाई रहेगा, यहाँ पर रिवर मूवमेंट हाई रहेगा। उसके बाद में दे आर हाईली इरोसिव इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी मैसिव अमाउंट्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। यहाँ से तो ले ही जाएंगे पूरा सिल्ट एंड सैंड मैसिव अमाउंट में। In the upper stretch, the water is crystal clear, cool, and rapidly flowing. The river passes through steep terrain. When the water travels down along the upper course, the river channel becomes increasingly narrow. Features of upper course of river are rugged and have steep slopes, river beds rocky, narrow, steep, and V-shaped water currents.
वाटर करंट इंक्रीजेज एज सेवरल ट्रिब्यूटरीज कनेक्ट इनटू द मेन रिवर। तो इसका आंसर क्या है? द मेच्योरिटी ऑफ रिवर कोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ व्हाट? वी शेप्ड वैलीज। भाई वी शेप्ड वैली तो तभी बनेगी ना जब इतना गॉट इट। वैसे इससे रिलेवेंट था नहीं ये वाला, आई डोंट थिंक ये रिलेवेंट था, बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1991, मशरूम रॉक्स, केप वर्डे, थार, वोसेजेस। वोसेजेस आई थिंक फिर से आया है ये, या फिर मैंने अभी फर्स्ट टाइम देखा है। विंड इरोजन, वॉल्केनिज्म। अच्छा, दिस क्वेश्चन यू विल डू बाय योरसेल्फ बिकॉज आई थिंक दिस इज मच इजियर, या फिर मैं कर दूं इसको भी। थार कैसे बना? थार क्या है? थार डेजर्ट की बात चल रही है यहाँ पे। किससे बना है थार डेजर्ट? सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। डायरेक्ट दिख रहा है ना यहाँ पे डेजर्ट, सिंपली कर दीजिए इसे। मशरूम रॉक्स पढ़ा है किसी ने मशरूम रॉक्स के बारे में? वो भी बता देता हूँ मैं। इनका ना बेस नैरो होता है और टॉप वाइडर होता है। ऐसी रॉक्स देखिए, दीज आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स। और ये इरोजन की वजह से हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो विंड्स क्या करती हैं, नीचे वाले सेक्शन को इस तरीके से ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे टकरा के, तो ये इरोड होता चला जाता है, तो इस तरीके से हो जाता है थोड़ा सा। गॉट इट? तो मशरूम रॉक्स विंड इरोजन से आ रहा है। और क्या बताना है? वो सेजेस अभी हमने आई थिंक थोड़ी देर पहले ही देखा था, ब्लॉक टाइप का माउंटेन्स थे। थोड़ी देर पहले हमने आई थिंक ये करा है, आप पीछे जाके देखिए एक बार, मिल जाएगा। और केप वर्डे क्या है? केप वर्डे अकेला बचा हुआ है, और दूसरी चीज़ है ये वॉल्केनिक आइलैंड है, ये हमको पता होना चाहिए था। गॉट इट? फ्यूचर में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से कर लीजिएगा। इसमें 2-3 चीज़ें अगर हमको पता है तो हम बाकी को डिराइव कर सकते हैं। अब बरखानेजा क्या होता है? बरखान मुझे सारे ही बताने पड़ेंगे आई थिंक, यहाँ पर तो सारे ही बताने पड़ेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं जो डेजर्ट के अंदर बतानी पड़ेंगी। बरखान होता है इस तरीके से, क्रीसेंट शेप ड्यून्स दिखते हैं। ड्यून्स के भी काफ़ी टाइप होते हैं, उनमें से एक बरखान है। गॉट इट? दिखा देता हूँ। इसे बरचन बोल रहा है कोई, कोई बरखन बोल रहा है, जैसा आप बोलना चाहो वैसे बोल लो। एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए, बाकी कोई डजेंट मैटर। बरखन दिख गया। ट्रांसवर्स ड्यून्स दिख गए, ट्रांसवर्स इस तरीके से। गॉट इट? लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स इस तरीके से, जैसे नदी आ रही होती है ना, रिवर, उस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल। गॉट इट? टाइप्स ऑफ ड्यून्स 3 टाइप के हैं, वो ये हैं। याद रखिएगा, इसका रिवीजन कीजिए 3 टाइम्स, इस वीडियो को बार बार देखिए, 3x, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कितना ज़रूरी है। ओके, विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंबल रिवेंस? अच्छा, कौन सा इरोजन चंबल के लिए ज़रूरी है? स्प्लैश, शीट, रिल, गली। अब देखिए कैसा 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 कौन कौन सा होता है, ये भी देख लीजिए। ये गली दिख रहा है, चंबल की खाड़ी देखी है ना तुम लोगों ने? ये क्या बोलते हैं, क्लेई सॉइल का जो इरोजन होता है ना, पानी से, रनिंग वाटर से, और उसके अंदर रेगिस्तान जैसी थोड़ी गली बच जाती है, ये रहा। घाटी जिसे बोलते हैं, चंबल की घाटी, वो होता है गली। गॉट इट? और जब रिवर लॉन्ग टाइम में रास्तों को काटते हुए, माउंटेन्स को काटते हुए निकल जाती है, काफ़ी एरिया कवर कर जाती है, उसे कैनियन बोलते हैं। ठीक है। जॉर्जेस क्या होते हैं? जॉर्ज होते हैं, फॉर एग्जांपल रिवर आ रही है, सामने माउंटेन आया, उसको कट किया और इस तरीके से कट करते हुए निकल गई। इंडिया में कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र।
कौन से जॉज को कट कर रही है बताना, ठीक है। बैडलैंड्स क्या होते हैं ये आप खुद देखिए, रिल्स क्या होती है ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद देखिए क्या होते हैं, हर चीज़ नहीं बताऊंगा। अब ये बहुत सिंपल है, इन्हें आप खुद से कीजिए। अच्छा, गली इरोजन्स कैन बी फाउंड इन चंबल बेसिन वेयर इट इज कॉल्ड रवाइंस, ठीक है। गली इरोजन यही है, रवाइन, चंबल रवाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995, the Indian subcontinent was originally a part of huge mass called, see, Indian subcontinent, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला ही चल रहा है पूरे में। इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड, क्या था उसका नाम, याद रखिएगा, गोडवाना कॉन्टिनेंट। और दूसरे वाला का नाम क्या था बताइए, लॉरेशिया, ठीक है, याद रखिएगा ये रहा, गॉट इट। किसी किसी जगह पर 4 स्टेजेस दे रखी होती हैं, किसी किसी जगह पे 5 स्टेजेस दे रखी होती हैं, और 5th स्टेज उसमें आती है जो करंट में चल रहा हो, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ लाइक दैट, समटाइम इट इज़ समथिंग एल्स। फर्स्ट स्टेज में पेंजिया था और पैंथलासा था, ऐसा कुछ था। सेकंड में लॉरेशिया एंड गोडवाना, उसके बाद में ये, एंड देन टुडेज वर्ल्ड। The paleomagnetic result obtained from the Indian India indicate that in past the Indian landmass mass has moved. Yeah, it was moved. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में यही तो है, ये मूव कर रहा है ना इंडिया, कहाँ से मूव करता हुआ आ रहा है, अफ्रीका से इस साइड, थोड़ा सा अंटार्कटिका कुछ पोर्शन भी इस तरीके से, गॉट इट। और किस साइड आ रहा है ये भी देखिए खुद ही, इसमें इसमें यू विल सी कहाँ आ रहा है इंडिया, इधर आ रहा है ना, तो नॉर्थ ईस्ट, सिंपल, वही आंसर हो जाएगा आपका। इसमें तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है, सिर्फ नॉर्थ वर्ड ही दे रखा है, सी आप अगली बार आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड तो यू विल नो, ठीक है, या सिर्फ नॉर्थ वर्ड ही बोल दो, कोई बात नहीं। 1997, match list 1 and with match list 2 and select the correct answer. Deccan Traps, Western Ghats, Aravali, Narmada Tapi, Pleistocene, late Cenozoic, Precambrian, Cretaceous, Eocene। अच्छा इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं क्योंकि अब टाइम मेरा वाले। Which of the following east flowing rivers in India has Rift Valley due to डाउन वापिंग। देखिए एक तो इसमें 2 वर्ड्स हैं, रिफ्ट वैली, मेन वर्ड ये है कि कौन सी रिवर ऐसी है जो रिफ्ट वैली बना रही है, गेटिंग इट, विल सी इनटू इट। आपका होमवर्क है रिफ्ट वैली क्या होती है, थोड़ी देर पहले ही बताया था रिफ्ट कैसे क्रिएट होती है, रिफ्ट वैली बनती कैसी है, 3 ब्लॉक्स माउंटेन के, कुछ याद आया, वहाँ से बनती हैं। तो ऐसी कौन सी वैली है जो नीचे चली गई और वहाँ पे बन गया, तो इकलौती रिवर है, इकलौती मुझे आई नो दैट ओनली, तो दामोदर इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर विद रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वॉपिंग, ठीक है। डाउन वॉप का मतलब क्या है, सेकंड वर्ड क्या है, डाउन वॉप, ये ब्लॉक्स हैं 2, तीसरा तीसरा ब्लॉक डाउन चला गया, यहाँ पर भी एक ब्लॉक था वो डाउन चला गया, तो उसकी वजह से रिफ्ट जनरेट हो गई, उसी को रिफ्ट वैली बोलते हैं। अब वेस्ट फ्लोइंग कौन कौन सी नदियाँ हैं वो भी बताइएगा, रिफ्ट वाली, रिफ्ट वैली वाली, गॉट इट। ईस्ट फ्लोइंग में दामोदर है, याद रखना। Which of the following scholars suggests the Earth's origin is from gases and dust particles? Nebular hypothesis theory. सॉरी, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने ज़्यादा डीप बता दिया, इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं, इसका आंसर ओ स्मिथ से, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी दी थी, अब मेरे को याद था तो मैंने बता दिया।
आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट ऑर्डर बताना है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है सॉइल इरोजन का, कि कैसे कैसे स्टार्ट होता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। स्प्लैश इरोजन होगा पहले, फिर शीट इरोजन, फिर रिल इरोजन, फिर गली इरोजन। समझ में आ रहा है? ये गली जो चंबल की घाटी है वो बनी कैसे? पहले पानी का स्प्लैश आया एकदम से, फिर शीट उड़ाई उसने, ऊपर की लेयर हटा दी सॉइल की, डेजर्टिफिकेशन हो गया, थोड़ा सा डेजर्ट टाइप का खाड़ी सी बन गई, थोड़ी सी घाटी। उसके बाद में रिल इरोजन, धीमे धीमे उसने लेयर चढ़ाना स्टार्ट करा रिल्स की तरह। फिर एंड में गली इरोजन, पूरा का पूरा ही ऊबड़ खाबड़ कर दिया। गॉट इट? देख लीजिए, स्प्लैश इरोजन इज जनरली सीन एज द फर्स्ट एंड द लीस्ट सीवियर स्टेज इन द सॉइल इरोजन प्रोसेस, which is followed by sheet erosion, then rill erosion, finally gully erosion. Splash erosion is the first stage of the erosion process. It occurs as a result of raindrops striking the bare ground. आया ना ऊपर सरफेस पे, वही बता रहा था। Sheet erosion is the loss of the soil in the thin layers due to shallow surface flow and raindrop contact. Got it? Sheet erosion क्या है? लॉस ऑफ द सॉइल हो गया, थिन लेयर्स हो गई, तो उससे क्या है, शैलो सरफेस फ्लो और रेन ड्रॉप कॉन्टैक्ट की वजह से वो हट जाता है, सॉइल चला जाएगा. दैट हैपन्स क्वाइट यूनिफॉर्मली अक्रॉस अ रीजन. Little transient streams that have distinct channels are created by the rill erosion. Rills are 30 centimeter deep or less shallow drainage canals. They expand as a result of surface water erosion. Got it? धीमे धीमे डीप होती चली जाएगी. A more advanced kind of a rill erosion is gully erosion. वही है. Got it? ये है इसका आंसर. इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इसको याद कर लेना. सर जी से याद होता है, SSR जी, सर जी. ओके, इसका कोड वर्ड है स्प्लैश, शीट, रिल एंड गली. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन 2001. क्वार्टेजाइट इज मेटामोर्फाइज्ड फ्रॉम. क्वार्टेजाइट किससे मेटामोर्फाइज्ड हो रहा है? ये रहा आपका रॉक साइकिल, यही मैं बता रहा था. सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक. ये मैग्मा है, क्रिस्टलाइन हुआ तो इग्नियस बन गया. गॉट इट? इग्नियस वापस से मेल्ट हुआ तो वापस मैग्मा बन गया. इग्नियस हीट और प्रेशर में आया तो मेटामॉर्फिक बन गया. मेटामॉर्फिक वापस मेल्ट हुआ तो वापस मैग्मा बन गया. इग्नियस में वेदरिंग, इरोजन ये सब हुआ तो सेडिमेंट फॉर्मेशन हुआ. सेडिमेंट फॉर्मेशन हुआ तो कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन हुआ, और ये वापस से लिथिफिकेशन भी होगा. कॉम्पैक्शन एंड लिथिफिकेशन. एंड सेडिमेंट्री रॉक बन गया. अब सेडिमेंट्री में हीट प्रेशर आया तो मेटामॉर्फिक वापस बन गया. सेडिमेंट्री से आप वेदरिंग इरोजन हुआ तो डिपोजिशन हुआ, फिर से सेडिमेंट्री बन गया, फिर वापस सेडिमेंट्री बन गया. सेडिमेंट्री से सेडिमेंट्री भी आ जाएगा अगर सेडिमेंट बनेगा, तो ये भी याद रखना. सेडिमेंट्री का मेल्टिंग हुआ तो मैग्मा बन गया. मैग्मा से वापस इग्नियस बन गया. वो घूम फिर के हीट प्रेशर में आया तो मेटामॉर्फिक बन गया. मेटामॉर्फिक डायरेक्टली उसका इरोजन हुआ मेटामॉर्फिक का, तो वापस से सेडिमेंट बन गया, फिर सेडिमेंट्री रॉक बन गया. ये सब साइकिल. गॉट इट? अच्छा, क्वार्टेजाइट जो क्वार्ट्ज हम यूज़ करते हैं घड़ियों के अंदर, वॉचेस में या क्लॉक्स में, हमेशा याद रखना सैंड जो होती है ना उसका कांच बनता है. क्या बनता है? ग्लास. गॉट इट? और जब वो नेचुरली बनता है ना, उसी को हम क्वार्ट्ज बोलते हैं. सैंड में सिलिका होता है ना, वैसे ही समझ लो कुछ. तो सैंड दिख रहा है कहीं पे, सैंड स्टोन दिख गया, सिंपल हो गया. ये तरीका है बस इनको सीखने का. गॉट इट? 2001 में क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेड अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम. द फॉर्मेशन, सेकंड ऑप्शन ये सही है. काफ़ी सारे सिस्टम से बन रहा है, हाइड्रोलॉजिकल से भी बन सकता है. द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग एंड प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, अभी कराया था, सही है. सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स. थोड़ी देर पहले बैक पीछे जाओ, देखो समझाया हुआ है. हाँ, अगर कोई फॉसिल पड़ा है उसके ऊपर सेडिमेंट्स आते गए लाखों सालों में, तो हाँ इट हैपन्स, सबसे ज़्यादा मिलते हैं. क्योंकि इग्नियस रॉक्स में तो भाई मुझे तो नहीं लगता सब पिघला हुआ ही मिलेगा मोस्टली, बचेंगे भी नहीं. सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स, यस. सेडिमेंट्री रॉक्स टिपिकली अकर्स इन लेयर्स.
यार ऐसा नहीं है, लेयर्स में भी हो सकती है, बट ठीक है, इट इज़ फाइन। उसमें टिपिकली दे रखा है, ऐसा नहीं है कि मोस्ट उसमें दे रखा है कि नहीं इट ओनली अकर्स इन लेयर्स। जैसे अदरवाइज अगर ये ऑप्शन की जगह यहाँ पर 3 होता सिर्फ, तो आई रेदर गो विद 1 2 3, बट ठीक है 1 2 3 4 भी इज फाइन। अनदर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्थक्वेक्स। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन मर्सेली स्केल। अब देखो 19 कहाँ 30 साल पहले सवाल आया था, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक कब से मर्सेली स्केल पे होने लग गया? नहीं होता ना, या होता है? अब आप बताओ होता है कि नहीं। इंटेंसिटी पूछा है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, ये याद रखना। गॉट इट? द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज। ओके फाइन। Earthquake magnitudes are based on direct measurements of the amplitude of the seismic waves. Fourth, in the Richter scale, each whole number demonstrates a 100-fold increase in the amount of energy released. Which of these statements is are correct? भाई 100-fold increase तो यार देखते हैं। The magnitude scale is known as the Richter scale. The magnitude relates to the energy released during the earthquake. It has been discussed previously. तो हम नीचे जाएंगे, वहाँ पे देख लेते हैं. The Mercalli scale is it identifies intensity scale is named after Mercalli, an Italian seismologist. The intensity scale takes into account the visible damage caused by the event. The range of intensity scale is 1 to 12. तो यानी फर्स्ट तो सही है, सेकंड भी सही है. Earthquake magnitudes are based on direct measurements of the amplitude of seismic waves. सही है. तो 1 2 3 तो बिल्कुल सही है, बट इसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं है सही, क्योंकि ये 100-फोल्ड से नंबर वाला ना मोस्टली यूपीएससी में गलती होते हैं, मैंने देख रखा है कई बार. 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर. इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में बैथोलिथ्स क्या होते हैं, लैकोलिथ्स क्या होते हैं, लैपोलिथ्स क्या होते हैं, फैकोलिथ्स क्या होते हैं, सिल्स क्या होते हैं, डाइक्स क्या होते हैं? पहले आपको मैं दिखा देता हूँ. डाइक, ये वर्टिकल आ रहा है ना कुछ डिग्रीज में, दिस इज डाइक, अंदर ही जम जाएगा. लोपोलिथ क्या है? लावा, मैग्मा था अंदर रह गया, लावा नहीं बन पाया. गॉट इट? लैकोलिथ अंदर ही रहेगा मैग्मा, और ये इसका कनेक्शन इससे टूटा और अंदर ना फॉर्मेशन हो गया. इस टाइप का फॉर्मेशन तो सिल और बैथोलिथ का इस तरीके से होता है. ठीक है, ये बैकोलिथ नहीं है, बैथोलिथ है. गॉट इट? अब इनके वो पढ़ लीजिए कि एक्चुअल में अगर मीनिंग के उसमें क्या है. बैथोलिथ्स दीज आर द लार्ज ग्रेनेटिक रॉक बॉडीज फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मैग्मा इनसाइड द अर्थ. ये तो है बैथोलिथ, ये रहा आपके सामने. ऐसी सिल होता है. दे अपीयर ऑन द सर्फेस ओनली आफ्टर denudation प्रोसेस रिमूव द ओवरलेइंग मटेरियल्स. लैकोलिथ्स क्या होते हैं? दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज कनेक्टेड बाय पाइप लाइक कॉन्ड्यूट फ्रॉम बिलो. गॉट इट? लैपोलिथ क्या होते हैं? एज एंड व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड, अ पोर्शन ऑफ द सेम वे में टेंड टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. वेयर एवर इट finds a weak plane, it may get rested in different forms. In case it develops into a saucer shape concave to the sky body, it is called lapolith. Got it? ये lapolith, ये saucer shape जो बन रहा है थोड़ा सा. Got it? कई बार ऐसे भी बन जाएगा, अंदर ही अंदर रह जाता है. याद रखना लैपोलिथ क्या होता है. लैकोलिथ अंदर रहेगा, लैपोलिथ भी अंदर रहेगा, बट वो रह जाएगा बाहर जाने से. लैकोलिथ का के अंदर कोई ना कोई कनेक्शन होगा जो बाहर के लिए लावा फ्लो करवा रहा होगा. एल से जाएगा, बी से रहेगा अंदर, यानी बैथोलिथ अंदर ही रहेगा, सेल अंदर ही रहेगा. लैकोलिथ है जो सिर्फ जा रहा है, याद रखना. लैकोलिथ है जो अंदर है, बट वो उसका फ्लो भी बाहर जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता, ये याद रखना. ठीक है. Facholith, a wavy mass of intrusive rocks at times is found at the base of the synclines or the top of the anticline in folded igneous strata. ऐसा syncline और anticline इस तरीके से. Got it? ऐसे इस तरीके से जो छूटते हैं, इस तरीके से इसके अंदर इस तरीके से रह जाएंगे. syncline और anticline देख लेना कैसे दिखते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से. गेटिंग इट ना? याद रखना इस तरीके से. डाइक्स क्या होते हैं? व्हेन द लावा मेक्स इट वे थ्रू क्रैक्स
and the fissures develop in the land. It solidifies almost perpendicular to the ground. It gets cooled in the same position to develop a wall-like structure. Such structures are called dikes. ये डाइक दिख रहा है, कहा था ना वर्टिकल थोड़ा जा रहा है, इसका डिग्री रहता है, टिल्टेड रहता है, दीवार जैसा खड़ा हो गया, उसी को बोलते हैं, पर ये अंदर रह जाता है। ये सब इंट्रूसिव है, याद रखना, एक्सट्रूसिव नहीं होते। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट मैग्माज आर अ कॉम्बिनेशन of liquid, solid and gas. Water vapor and carbon dioxide are the principal gases dissolved in the magma. Basaltic magma is hotter than the silicic magma. Magma. The magma solidified between sedimentary rock in a horizontal position is known as dike. देखो अभी हमने करा था, the magma solidified between sedimentary rock in a horizontal position। भाई कब से sedimentary rock भाई, वो तो intrusive rock है, वैसे भी dike अभी हमने देखा है, यहाँ से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन डायरेक्ट, अभी देखा है जस्ट, यही सीखना है बस हमको। तो 4 तो नहीं हो सकता, तो डी गया, बी गया, सी गया, आंसर ए हो गया, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। फिर भी हम देख लेते हैं। वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द प्रिंसिपल गैसेज डिजॉल्व इन द मैग्मा। याद रखना वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है, वो तो होता ही है, रिलीज बाकी गैसेज भी होती है, सबसे ज़्यादा यही होता है। बसाल्टिक मैग्मा इज हॉटर देन द सिलिसिक मैग्मा। याद रखना बसाल्टिक और सिलिसिलिक मैग्मा, बसाल्टिक हॉटर होगा सिलिलिक मैग्मा से, ठीक है। सिलिलिक मैग्मा भी बताऊं या नहीं बताऊं? चलो मैं बता ही देता हूँ क्या होता है। जो बेसिक होता है ना, जिसमें एसिडिक कम होगा वो होगा बसाल्टिक, और जिसमें एसिडिक ज़्यादा होगा ना वो होगा सिलिलिक। सिलिका का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है सिलिलिक में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बसाल्टिक गर्म होता है, बसाल्टिक इज़ द हॉटेस्ट, डार्क कलर्ड, रिच इन आयरन, मैग्नीशियम बट पुअर इन सिलिका। गॉट इट। बसाल्टिक में कम से कम सिलिका होगा, आराम से निकलता है, ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता, ऐसे बह के आ जाएगा, एक्सप्लोजन ज़्यादा नहीं होगा। गॉट इट। हाई फ्लूइडिटी होती है क्योंकि उसमें सिलिका कंटेंट ही है, मिट्टी वाला कंटेंट नहीं, रोकेगा क्या, पानी की तरह बहता हुआ चला जाएगा। याद रखना बसाल्टिक, बी से याद रखना बसाल्टिक, और बी से ही याद रखना बहता हुआ। इसका मतलब मिट्टी नहीं है उसमें रोकने के लिए, उसको सिलिका नहीं है, इसका मतलब उसमें एसिडिक चीज़ें नहीं हैं। मेटल्स ही तो एसिडिक बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए वो बेसिक है, इसलिए उसका नाम बसाल्टिक है, ये याद रखना बस, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट एसिडिक वाला होता है। हाईली विस्कस, लाइट कलर्ड, लो डेंसिटी, हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका। भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मान लो, कितना खतरनाक है, आग लगी तो एकदम फटेगा कि नहीं फटेगा। सेम इसमें भी विस्कस है, ये एसिडिक है, काफ़ी ज़्यादा फटता है ये। फ्लो स्लोली एंड सेल्डम ट्रेवल फार। अब इसमें मिट्टी मिली हुई है तो स्लो ही चलेगा ना, क्ले की तरह, जैसे क्ले होता है खींचते हैं हम उसको इस तरीके से। द रिजल्टेंट वॉल्केनिक कोन इज देयर फॉर स्ट्रैटिफाइड, हेंस द नेम स्ट्रैटो वॉल्केनो एंड स्टीप साइडेड। इनसे ही स्ट्रैटो वॉल्केनो बनते हैं, याद रखना। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है, वो पत्थर जैसा हो जाता है बाद में ये। द रैपिड सॉलिडिफाइंग ऑफ लावा इन द वेस्ट obstructs the flow of the outpouring lava resulting in loud explosions, सूखता जल्दी है, and throwing out many volcanic bombs or pyroclasts. Got it? I hope basaltic और acidic का तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। Consider the following geological phenomena: development of a fault, movement along a fault, impact produced by a volcanic eruption, folding of rocks. Which of the following cause earthquakes? C. Folding of rocks earthquake cause करेगा, impact produced by a volcanic eruption करेगा। अगर डायरेक्ट पूछा होता तो सिर्फ ये वाला में डालता, सॉरी, फोल्डिंग ऑफ रॉक्स या मूवमेंट अलोंग अ फॉल्ट, वैसे सारे ही हैं क्योंकि ये तो सारे डालने पड़ेंगे। डेवलपमेंट मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वॉल्केनिक इरप्शन से भी अर्थक्वेक आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। मूवमेंट फॉल्ट के अराउंड में होगा, फॉल्ट क्या है, टेक्टोनिक प्लेट ही तो है भाई, या जिस जगह पे फॉल्ट हुआ है वो है। डेवलपमेंट ऑफ अ फॉल्ट, टकरा गई प्लेट्स, ब्लॉक्स टकरा गए, फोल्ड्स बन गए, माउंटेन्स, चारों ही हैं इसका आंसर जहाँ तक, हाँ चारों ही हैं। गॉट इट। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, वॉल्केनोज, आइसोस्टैटिक डिस्टर्बेंसेस, ये भी याद रखना। आइसोस्टैटिक डिस्टर्बेंस क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट में कुछ दिक्कत आ गई इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम था उसको,
इक्विलिब्रियम को बिगाड़ दिया, इक्वालिटी को बिगाड़ दिया, जो अर्थ की एक आराम से थी उसको छेड़ दिया, तब होते हैं ये। जब डिपॉजिट सेडिमेंट जो होते हैं वो डाउन बाय द रिवर्स एंड ग्लेशियर्स ऑन द ओशन फ्लोर, एज द एस्थेरोस्फीयर इज एन सेमी मोल्टन स्टेट, द डिस्टर्बेंस इन द इक्विलिब्रियम may result in an earthquake. Got it? Isostatic disturbances. Plate tectonics, volcanoes, folding and faulting. Done. Consider the following statements. टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर। देखो नंबर आ गया, नहीं हो सकता भाई, इतना किसी को नहीं पता, मतलब एग्जैक्ट इतना गलत है। रेशियो ऑफ लैंड एरिया टू वाटर ऑन द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 1:4 थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है 1:, इसमें भी देखो कितना ढूंढने पे 1:3 दे रखा है, तो ये याद रखना, ये नंबर वाला दिक्कत ना काफ़ी आती है। 1:2 तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले, तो 1:2 तो नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, तो बचा बिना पढ़े ही 3rd है इसका आंसर, बट स्टिल पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज इन द पैसिफिक ओशन। हाँ, लार्जेस्ट ओशन है, पैसिफिक में ही होगा। ये रिंग ऑफ फायर कहाँ है बताइए, पैसिफिक में ही तो है, या मैं गलत कह रहा हूँ? चेक करना ज़रा गूगल पे एक बार, पता चल जाएगा गलत है या सही है। 2005 में क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The axis of the Earth's magnetic field is inclined 23.5 in the geographic axis of the Earth. The Earth's magnetic pole in the northern hemisphere is located on a peninsula in northern Canada. Earth's magnetic equator passes through Thumba in South India. देखो axis of the Earth's magnetic fold inclined 23.5, ऐसा नहीं है। 23.5 क्या inclined है, देख के बताना, पता करना 23.5 क्या inclination है। गॉट इट? नंबर ज़्यादातर गलत ही देता है यूपीएससी। द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन अ पेनिनसुला इन नॉर्दर्न कनाडा। भाई कुछ भी कहीं पे भी लोकेट कर दो, डायरेक्ट लोकेशंस भी कई बार गलत दे देता है। ये अप्रोचेज है मैं जो बता रहा हूँ, ये आगे चल के ट्रिक्स में काम आएंगी, याद रखना। ये लोकेशन, ये डेटा कई बार गलत करता है। थोड़ा सा ट्रेंड बदला है इसका, बट उस टाइम पे तो काफ़ी गलत देता था। अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासिस थ्रू थुम्बा इन साउथ इंडिया। देखिए मुझे ये पता नहीं है, इसमें मैं सिर्फ ट्रिक लगाऊंगा क्योंकि इतना नॉलेज मैं नहीं लेके रखा ना, मुझे लगता है किसी के पास होगी। 2 ऑप्शंस गलत हैं, बस मैं उनको देखूंगा। 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, बचा 3 ओनली, तो मैं डी को कराऊंगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कुछ जो अप्रोचेस से सॉल्व होते हैं, जब मैं पेपर्स कराऊंगा तब आई सॉल्व ओवर देयर। बाकी मैंने यहाँ थोड़ा बहुत सिखा ही रहा हूँ। डायरेक्टर हर चीज़ नॉलेज से सॉल्व नहीं होती, डालना ही नहीं चाहिए था ये वाला क्वेश्चन इसके अंदर। Consider the following statement. The Richter scale is logarithmic, and so an increase of 1 magnitude unit represent a factor of 10 times in amplitude. आ गया? 100 times नहीं है, 10 times in amplitude है। Each integer reading of the Richter scale has an energy 100 times। देखो फिर से वही सेम रिपीटेशन, याद आया कुछ? तो 2 तो नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले हमने वी सॉल्व द क्वेश्चन ना, सेम वही स्टेटमेंट उठा करके यहाँ पर डाल दिया है, तो अगर आपने वो स्टेटमेंट पढ़ा है तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड तो नहीं हो सकता भाई, बोथ 1 and 2 नहीं है, 2 ओनली नहीं है। गॉट इट? और इन्होंने 10 टाइम्स इन एम्पलीट्यूड है, मैं तो भाई इसे भी नहीं करके आऊँगा, मैं इसमें नाइदर 1 nor 2 दूंगा, बट इन्होंने आंसर ए दे रखा है, तो माइट भी ये हो सकता है, तो देख लो। इज एन इंक्रीज 1 मैग्नीट्यूड यूनिट रिप्रेजेंट्स अ फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स इन एम्पलीट्यूड। The Richter magnitude of an earthquake is determined from the logarithm of the amplitude of the waves. Okay, sorry 1 से लेकर 10 तक जाता है ना, वही है ये, ठीक है। 1 magnitude represents a factor of 10 times amplitude. Got it. 1 amplitude 10 times amplitude को दिखाता है, ठीक है। Got it. Yeah, this is correct. सेकंड हमने अभी थोड़ी देर पहले करा था ना, PYQ से, ये डायरेक्ट ऑप्शन है। पीछे जाइए, बैक करिए वीडियो को, देखिए इसमें मिलेगा। Okay. 2009. In the structure of planet Earth, below the mantle, the core is mainly made up of which of the following? देखिए अभी मैंने सियाल सीमा कराया था, ये कॉन्टिनेंटल, ये आपका ओशनिक क्रस्ट, ऐसी कोर है, मेंटल है, फिर कोर है, इनर कोर, आउटर कोर। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो कोर है ना, ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो ये किससे बनेगा? ये आयरन से तो बनता है।
यही सोच करके हम मतलब साइंटिस्ट ने यही सोचा है कि मैग्नेटिक फील्ड शायद आयरन है इसलिए बन रहा है, वरना किससे डेवलप होगा। गॉट इट। इसलिए इसका आंसर सी है, आयरन एंड निकल। नाइफ के नाम से हम इसको जानते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you travel in Himalayas you will see the following: deep gorges, U-turn river courses, parallel mountain ranges, steep gradients causing land sliding। सारी चीज़ें ही तो होती हैं, क्या नहीं होता हिमालयाज में। सिंपल क्वेश्चन। Which of the following phenomena might have influenced the evolution of organisms? सी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पहले ही आ गया, ग्लेशियल साइकिल्स आ गया, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, बीच में ग्लेशियल साइकिल्स भी तो चल रही थी। गॉट इट, दोनों ही है। अनदर क्वेश्चन 2023, इस पर क्वेश्चन है ही नहीं, अब डायरेक्ट 23 में क्वेश्चन आया है 2014 के बाद में। Consider the following statements. In a seismograph, P waves are recorded earlier than S waves. अभी हमने P एंड S waves करा था थोड़ी देर पहले, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स बताया था ना। तो P waves आर दीज वेव्स, आती हैं और ऐसे फैल जाती हैं सरफेस पे टच होके, और S waves हैं सेकेंडरी वेव्स, वो आएंगी और इस तरीके से 90 डिग्री अपवर्ड मारेगी, फिर बैक मारेगी 90 डिग्री का, सरफेस पे लगती है, तो ये 90 डिग्री होती है सरफेस के। यही चीज़ बता रहे थे, परपेंडिकुलर होती हैं। Let's see. In P waves, the individual particles vibrate to and fro in direction of the wave propagation, whereas in S waves, the particles vibrate up and down at the right angles to the direction of the wave propagation. Got it? Got it? सही है ये। इन चीज़ में पी वेव आर रिकॉर्डेड, अच्छा हाँ, पी वेव्स एस वेव से पहले ही आएगी, क्योंकि एस वेव्स तो वैसे भी 90 डिग्री वाले ग्राफ पे चल रही है, तो टाइम तो लेगी। पी वेव्स पहले आ जाती हैं। दूसरी चीज़, पी वेव्स सॉलिड्स में भी से भी निकल सकती है, लिक्विड से भी निकल सकती है, पर एस वेव्स नहीं निकल सकती सॉलिड के अलावा किसी भी चीज़ से, ये भी याद रखना। पहले ही कराया थोड़ी देर पहले, फिर से आई एम टेलिंग यू। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।